Hello, everyone. Welcome to IFAS. I hope you all are doing great. Today, we have a very special guest with us over our platform, Radha, who is the MH Set Mathematical Science topper, and she had scored 160 rank. A warm welcome to you, Radha. Thank you, ma'am. First of all, a big congratulations to you. Thank you so much. Yeah. So, how are you, Radha? Yeah, I am fine. How are you, ma'am? I'm doing great, thank you. So, Radha, we just want, can you please give us a quick introduction about yourself? Yeah. My name is Miss Radha Sunambekar. I'm currently working as a maths professor in Thakur College of Engineering, Kandivali, Mumbai. Okay. And I pursued my master's degree from Institute of Chemical Technology, ICT Mumbai, that is in Matunda, with first class, and bachelor's from Mumbai University. Great. I my MSc in 2021. Got it. So, Radha, how does it feel to perform so well in MHSET? Yeah, actually, it is very satisfactorily. I feel satisfactorily because it's my first attempt, and in first attempt, I did. Many people said you did very well, Right, but right. I felt that yeah, it's just hard work and smart work. That's it. Definitely, your hard work definitely pays off. So, what made you decide to appear for this exam? Actually, I love teaching, Okay, and I wanted to be a math professor. So great. I appeared for this exam. Great, Radha. So, Radha, just wanted to know, what was your reaction when you found out that you have topped the examination? Yeah, actually, when I was traveling from my college to job location to my home, and I was with my father, and one of my friends told me that Radha result has declared. Okay, Uh, have you seen that? So no, I was on we were driving a bike, and my father was driving, and I was sitting backside of him. So मैंने उसी वक्त देख लिया कि मैं बैठी थी तो मैंने मेरा एक बार मैंने देखा मुझे यकीन नहीं हुआ कि इट वाज माय नंबर great, of course, yes. I was shocked. I literally shocked. Acha. Great, yeah, great. Matlab, this is something now you are going to inspire so many learners out there. Being a topper and scoring such a great marks over the examinations. And I had found it a very tough examination, right? It is a very tough examination. Yes, actually. Great. So, what was your parents? How was your parents' reaction on it? Yeah, they are so happy. They were happy. Obviously, they will be happy. Yeah. So, rather like I just wanted to know, how did you formulate strategies for your examination? What all strategies you have played, and how they helped you to score good marks? Okay. Yeah. First of all, as parents should know the syllabus, what are in the syllabus, the topics, mathematical. Then go through the question paper, previous year question paper that plays a vital role because 50% of your part that will play by your question paper, previous year question paper. Right. Make a strategy according to that. Got it. So, आपने IFS कब join किया था, and examinations कब थी, and then we just wanted to know कि like how IFS helped you in the examination. Like सबसे पहला question should be कि is क्या आपको IFS ने help की examination के लिए? Yes, of course. Right. बिकॉज़ So, वही हाँ, थी go ahead. आप आपका इंस्टीट्यूट इतना मतलब ये टॉप लेवल पे है और नाउ आई गॉट टू नो कि ये इतना टॉप लेवल पे क्यों है मतलब इतने अच्छे एक्सप्लेनेटर इतने अच्छे प्रोफेसर थे आपके पास तो यस बिफोर स्टार्टिंग 26 September 2021 was the exam date Okay. and was their form application form filling date was from May, I think. Yes, it's Okay. from May, 17th May. And before 2 months, I was starting the preparation. I was decided to give the set, and I was started just 2 months before the examination or the application form date. And Okay. I filled the form, and then I was studying. So I saw the syllabus, Mm-hmm. and
like one of my friend is working in IFS, Rohit Muranjan sir. Okay. Uh, he is a mathematics professor. So Right. he suggested me to join some lectures or at least purchase some test series. I Right. got to know after giving a test series, I got to know where I'm wrong. I'm getting wrong. Got it. आप Got it. Right. पूरे वो टेस्ट सीरीज ही आपको बता सकते हैं भले Yes. ही Yes. आप स्टडी करें You can examine yourself definitely by test series. Right. मैंने एक्चुअली का क्लास ज्वाइन नहीं किया बट टेस्ट सीरीज और उसका जो वीडियो सॉल्यूशंस है हाँ. उसमें जो आप प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया दैट वाज रियली गुड मतलब उससे बहुत मुझे फायदा हुआ और Great. आप आपके जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के जो बुक्स है Mm-hmm. एप्टीट्यूड बुक दैट आई read that book completely within 2 months. I completed those books. So those books helped me a lot. Got it. Got it. दिस इज क्वेश्चन दैट राइज कि बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मैंने तो हर एक टॉपर का एक डायलॉग होता है कि यार मैंने तो आज पढ़ाया ही नहीं किया एंड एक हफ्ते में ही मैंने पढ़ाई करके हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स सो जस्ट वांटेड टू नो इज इट अ मिथ कि एक हफ्ते में टॉपर पढ़ के ये लेकर आते और यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस कि क्या क्या चीजें कैसे 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 प्रोसेस को हम लोग बढ़ाए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी कि कैसे कैसे आपने पढ़ा कि यू माइट हैव सैग्रीगेटेड थिंग्स राइट कि आज Yes. इतना इतना पढ़ना है तो व्हाट वाज दैट जर्नी ऑल अबाउट Means you want to know the way in which I studied. Yes. Correct. Okay. First, I already mentioned that see the syllabus, whatever is syllabus there. See, in this set, there are two papers, paper 1 and paper 2. For mathematics students, पेपर 2 को क्रैक करना इज नॉट अ बिग टास्क अगर उसने अच्छा पढ़ाई किया है अच्छी उसकी स्ट्रेटेजी है बट द प्रॉब्लम इज पेपर 1 Okay. दैट विल मतलब दैट इज द मेन डिफिकल्टी बिकॉज वो रैंक पे इफेक्ट करता है दैट इज इफेक्ट दैट विल क्रिएट ऑन इफेक्ट ऑन योर रैंक so if you score in paper 1 as well so that will make you more closer to the rank. Got it. तो बच्चों को टेस्ट कब से स्टार्ट कर देना चाहिए देना लाइक डू यू सजेस्ट कि लाइक आपके यूनिट वाइज कंप्लीट होता है जैसे एक यूनिट कंप्लीट होता है देन यू शुड स्विच टू टेस्ट और एल्स कि आपका जब एक बार पूरा ही कंप्लीट सिलेबस हो गया उसके बाद हम टेस्ट लें या फिर कुछ बच्चों का ऐसा भी क्वेरीज होता है कि वो लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं जस्ट टेस्ट पे टेस्ट दिए जाते हैं जस्ट टू नो कि कहाँ हम लोग स्टैंड बाय कर रहे हैं तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कब बच्चों को टेस्ट के लिए अपीयर करना चाहिए पहले तो सिलेबस पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चन पेपर रीड करो क्वेश्चन पेपर में जो जो सेट में पूछा गया है एटलीस्ट उसको पढ़ाई करो उसका कंसेप्ट पढ़ो और कंसेप्ट पढ़ते हो रिक्वायर्ड कंसेप्ट नॉट नेसेसरी ऑल द कंसेप्ट जब कंसेप्ट पढ़ते हो तो टेस्ट सीरीज देना चालू कर दो तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत हो गए ओके तो स्टूडेंट्स को किस चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए लाइक शुड दे मतलब तो टाइम मैनेजमेंट लाइक मुझे एक चीज पता करनी थी कि स्टूडेंट्स कैसे टाइम मैनेज करें बाय गिविंग एन एग्जाम शुड दे मतलब किस तरह के पेपर्स उन लोगों को सॉल्व करने चाहिए एंड किस तरह के कंटेंट पहले सॉल्व करने चाहिए सो दैट उनका टाइम मैनेज हो जाए एंड पूरा ही सिलेबस उनका पूरा क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर सकें Yeah, for time management, the first thing is you should do practice. Practice is the key. आपके जो प्रिपरेशन में आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट तो ही मैनेजमेंट होगा और पेपर सॉल्व करते वक्त जो आपको सबसे इजी लगे जो आपका द कंफर्टेबल टॉपिक्स द टॉपिक्स इन व्हिच यू आर कंफर्टेबल फर्स्ट गो थ्रू दैट टॉपिक फर्स्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ओके तो तो इन कुछ दिस टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी एंड से कि किस तरह से थोड़ी आपकी एंड से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए लर्नर्स को कि कैसे आपने अपनी परफॉर्मेंस को इतना बूस्ट अप करा हुआ है तो मैंने तो सेट वर्किंग में ही की आई वाज वर्किंग व्हेन आई वाज स्टार्टिंग स्टूडेंट प्रिपरेशन तो मैंने पूरा घर बैठ के 8-8 घंटे पढ़ाई करके नहीं किया है राइट एवरीवन सेज ना कि हम तो भाई 8-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और एग्जाम क्रैक करने के लिए मेनली टॉपर्स का यही होता है कि व्हाट द स्टूडेंट अजम्प इज कि जो भी टॉपर है तो वो मतलब 12 से 16 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहा है सो व्हाट्स इट सेम इन योर केस एज वेल नहीं जरूरी नहीं इट इज नॉट नेसेसरी इफ योर स्ट्रेटजी इज वेल एंड गुड देन
after studying 4 hours per day, you can top, you can get in a rank. ग्रेट लर्नर्स, आप लोग सुन रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है एंड यू आर गोना स्कोर ग्रेट मार्क्स जस्ट लाइक राधा ऑन अ प्लेटफॉर्म। या सो राधा, और आपका एक छोटा वॉक थ्रू बता दीजिए, यू नो, टुवर्ड्स योर सक्सेस जर्नी। लाइक हु इंस्पायर्ड यू, हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड? यू नो, कभी कभी टाइम आया होगा व्हेन यू फेल्ट कि यार अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अब ये चीज नहीं हो पा रही है, सो यू नो हाउ डू यू ओवरकम अक्रॉस ऑल दीस सिचुएशंस, ऑल दीस हर्डल्स? मतलब मास्टर्स डिग्री में जब मैं व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय बैचलर्स डिग्री, एट दैट टाइम फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक नहीं थी, तो इसलिए मास्टर्स तो कर नहीं सकती थी, बट आईसीटी से करना, आईसीटी इज अ रिनोन इंस्टीट्यूट, आईसीटी इज अ रिनोन इंस्टीट्यूट इन मुंबई, एज वेल एज वर्ल्ड रैंक भी आया है उसका, राइट। की है, तो उसमें अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो मैंने बस 2 महीना पढ़ाई किया एंट्रेंस का। आई वाज आल्सो टॉपर इन देयर रैंक एंट्रेंस एग्जाम, so I secured first rank, and I got selected in the merit list of master's degree. So I completed my master's in engineering mathematics from ICT Mumbai. And Great. at that time, I realized that कि आपको टीचिंग में सबसे ज्यादा आपका बेनिफिट होता है। When you are a teacher, you are learner as well as you are teacher. So there are two benefits. जब Right. आप किसी कंपनी में काम करते हो, उससे तो अच्छा है कि आप दूसरों को पढ़ाओ, खुद भी सीख लो, करेक्ट तो करेक्ट। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। तो वो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा है। आई फंडेड माई एजुकेशन माई सेल्फ, उसी से मैंने ये कंप्लीट किया। नहीं, अभी तो पढ़ना ही है, मैंने खुद मेरा सब कुछ लगा दिया। तो ग्रेट। सेट तो मुझे मतलब फर्स्ट पैंडेमिक सिचुएशन थी कोरोना की, ओके। तो सब घर पे ही बैठे थे। अभी तो हम क्या करें, तो एक कॉलेज ज्वाइन किया, और देन आई रियलाइज कि हाँ, टीचिंग में थोड़ा कंफर्टनेस आ रहा है। व्हेन आई वाज इंटरेक्टेड विद माय स्टूडेंट्स, देन आई गॉट टू नो देयर डाउट, व्हेन दे आर फॉलिंग, दे कहाँ पे पीछे जा रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स अच्छा बना ले, तो हमारा मतलब फ्यूचर है वो अच्छा बन सकता है। तो आई रियलाइज दैट थिंग, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू क्रैक टेस्ट नेट। Great, तो great, great. दिया So it's बस। all over, it's more over dedication, right? या इट्स डेडिकेटेड। Great, great. तो अभी तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली कि यू नो एमएच सेट एंड ऑल। सो यहाँ पे कुछ कुछ लर्नर्स हमारे साथ ऐसे भी हैं जो देख रहे होंगे भी वीडियो की, यार ये एमएच सेट की एग्जामिनेशन किस लिए है, क्यों है, क्या क्या होता है, कैसा पैटर्न है। तो एक छोटा सा वॉक थ्रू अगर आप इसके लिए करवा दें प्लीज। You want to say learners want to know the What is pattern? MH? Yes, yes. Okay. Pattern means see first, there are two papers, paper one and paper two, and paper one contains paper one is of 100 marks, or second is of 200 marks. So total 300 marks का पेपर होता है। पहले तो कैसे होता था कि आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई होना पड़ता था, तभी आप क्वालिफाई हो जाते। बट नाउ पुणे यूनिवर्सिटी ने को जो रिलैक्सेशन दिया बहुत अच्छा है कि आपको दोनों पेपर का मिला के मार्क्स, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। Got it, got it. So I got 56 in that paper one, and इसमें मुझे 104 मिल गए। Got it, got it. Amazing, amazing. तो ऑल्सो लर्नर वांट्स टू नो कि यू नो क्यों बच्चा एमएच सेट का एग्जाम देता है, लाइक उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर एमएच सेट। सो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? दिस इज टू ऑल दी लर्नर्स जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है हमारी टॉपर से, राधा से, सो प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ओवर द कमेंट सेक्शन। जैसे कि प्लीज प्लीज। एमएससेट ने भी वीडियो बनाए हैं इस पे कि एमएससेट के क्वालिफाई करने के बाद आप एक्चुअली रोहित सर ने ही बनाया वीडियो, आप यू कैन सी दैट इज वेरी नाइस वीडियो कि व्हाट यू कैन डू आफ्टर क्वालिफाइंग एमएससेट। व्हेन आई क्वालिफाइड माय एमएससेट, आई वाज सिलेक्टेड इन ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद ग्रेड 3। तो वो आपका एक बेनिफिट होता है, आप इंस्टीट्यूशन में या फिर कोचिंग में आप जा सकते हो। राइट राइट राइट। ग्रेट ग्रेट राधा। एंड राधा, इसमें मुझे आपसे थोड़ा और पूछना था कि
लास्ट मिनट टिप्स क्या होंगी आपकी एंड से? मतलब आपने जब अपना प्रिपरेशन कर रहे थे एंड जब एग्जाम का लास्ट का 1 हफ्ता बचा था, तो तब आपने किस तरह से, आपके पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि अभी एग्जाम है, यू नो मेनी थिंग्स कम अप विद इट। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, या फिर वो 1 वीक स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन एंड यू आर वेरी मच फोकस्ड फॉर योर एग्जाम? अच्छा, सबसे पहली बात तो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर एग्जाम ओनली। मतलब आप वो वीक में, पूरा वीक में आपके साथ कुछ भी हो, आप इधर उधर कुछ भी एनवायरमेंट हो, आप पूरा का पूरा ध्यान अपने एग्जाम पे लगा दो। बस मुझे एग्जाम ही देना है, एग्जाम की बजाय मेरा इधर उधर कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो ऐसे ही सोचती थी कि बस ये एग्जाम ही है, बस ये लास्ट है, मेरा लास्ट चांस है, और लास्ट चांस करके दे दी। ग्रेट, 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 ओके। तो राधा, आप भी, आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है? लाइक व्हाट आर यू प्लानिंग कि आफ्टर एमएच सेट, अभी कॉलेज के बाद देन व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? वही प्रोफेसरशिप प्रोफेसर। कंटिन्यू। हाँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो लर्नर्स को बता दीजिए कहाँ स्कोप कर रहे हैं, कहाँ एम कर रहे हैं, सो दैट इवन इफ दे वांटेड टू स्टडी, डेफिनेटली दे कैन गो विद राधा मैम एज वेल। ओ माय। यस, यस। तो एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड टू फॉर आईएफएस की, कि और हम कि कोई भी, या फिर लर्नर्स को एडवाइस आप देना चाहेंगी कि कैसे क्या चीजें करनी चाहिए? एनीथिंग फ्रॉम योर एंड? जस्ट आप अपने खुद से 100% दे दो टू ऑल द लर्नर्स, गिव यू 100% एंड मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। देखिए, एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेटेजी, सो मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। टाइम राइट, मैनेजमेंट राइट। और डेडिकेशन, और फॉलो आईएफएस। वो आपको इतना अच्छा पढ़ाते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। नो, मुझे तो बेनिफिट हो गया। राइट, राइट, राइट मैम। सो राधा, और आप अपना कुछ, आप अपनी एंड से कुछ इनपुट्स अगर हमारे लर्नर्स को देना चाहेंगे, एनी मोटिवेशन थिंग कि किस चीज से आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, या हु वाज योर आइडियलिस्टिक पर्सन कि यार इसके जैसा मुझे बनना है, तो वो सब एक बार लर्नर्स को अगर हम आप बता दें। ऐसे तो मतलब ऐसे कोई, आई वाज लाइक, ऐसे कुछ सोचा नहीं था, बस करना है। एक चैलेंज आया कि यस, एंड यू हैव मतलब नेल्ड इट एंड यू हैव नेल्ड इट एक्चुअली। Great. So, you have to be very much motivated while giving the examination, या फिर आपको खुद पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा होना चाहिए कि yes, if you're getting a challenge, you have to crack it, right? यस, योर मोटिवेशन इज योरसेल्फ ओनली। आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं भी उनको नहीं कर सकती, बट उनको खुद से होना है, क्योंकि वो खुद ही है। जब वो अकेले होते हैं तो खुद ही खुद का मोटिवेशन बनना चाहिए। राइट, राइट। तो रथ, अगर किसी बच्चे को अच्छा स्कोर करना है, तो उनको कितना ड्यूरेशन या कितना टाइम स्पैन होना चाहिए कि उन लोग उतने टाइम स्पैन से पढ़ना चालू कर दें? बिकॉज़ आई नो फॉर द फैक्ट कि हर कोई कह देता है कि हम 1 महीना पहले पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, 1.5 महीना पहले पढ़ के कर रहे हैं एंड सो ऑन। बट फॉर द मतलब हम लोगों को ये रियलिटी चेक है कि इतनी जल्दी से 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते में किसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो वो टाइम स्पैन कितना होना चाहिए एक स्टूडेंट को डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए टू स्कोर अ गुड मार्क्स और टू स्कोर अ गुड रैंक? अच्छा, आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन मार्च 2021। ओके। देखो, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर एक का आईक्यू लेवल भी अलग होता है। राइट, मुझे नहीं राइट। पता मेरा आईक्यू लेवल क्या है, बट मुझे नहीं पता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, आई वाज नॉट नोन की दैट आई विल क्रैक दिस और नॉट। तो आई डिडंट नो दिस थिंग। बट जैसे जैसे मैं करती गई, 1 to May, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बस 6-7 महीने में हो गया। तो ऐसा एक इफेक्टिवली टाइम दे दो बस। और एक इफेक्टिवली 6-7 महीना इज़ अ गुड टाइम एंड डेडिकेटेडली 4 आवर्स अ डे, करेक्ट? आई क्रैक्ड एमएससेट व्हाइल वर्किंग। तो ओके। अगर 8 घंटा घर पे बैठ के कर रहा है तो उसको तो हो जाना चाहिए। 8 घंटे का घर पर, ओके, डेफिनिटली, यस, यस, यस। एंड आजकल तो मोर ओवर आप लोग का वैसे ही टाइम स्पैन बच जाता है, बिकॉज़ आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो मोर ओवर स्टूडेंट्स आर टर्निंग इंटू ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस इटसेल्फ। तो आई गेस वो भी एक टाइम काफ़ी आप लोगों का बचा देगा टू प्रिपेयर, ऑनलाइन से आपके पास टाइम बच्चों के पास बच जाता है। है ना? सो डज़ इट हेल्प यू कि अगर अभी आप, जैसे कोविड चल ही रहा था, देन यू माइट हैव टर्न टू ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसी चीज़ों ने आपको हेल्प की? कोविड का टाइम था एंड देन हाउ यू ओवरकम ऑल दीज़ थिंग्स, बिकॉज़ ऑब्वियसली उस टाइम पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा
नई-नई चीज़ आई हुई थी कोविड एंड देन अगेन एक और एक डिमोटिवेशन आ गया होगा आपके अंदर भी कि यार अब एग्ज़ाम कैसे देंगे? कैसी पढ़ाई होगी? क्या-क्या चीज़ें होंगी? Yes, So how yes. do you overcome all these things As a teacher or as a aspirant? as an aspirant? Okay. Yeah. As an aspirant, see, first university did not declare the date. Actually, they are not declaring it because of the COVID pandemic, and we were all the aspirants were worrying कि कब लगेगा. हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरा तो ऐसा था कि कभी भी लग सकता है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल एग्जाम लग गया और वी आर नॉट प्रिपेयर्ड. नो, तो राइट। हुँ, हुँ। भी लग तो जाएगा. एटलीस्ट कभी तो लग ही जाएगा एग्जाम. तो चालू कर दो पढ़ाई, बस ऐसा था हमारा. गॉट इट। और सिंस आई वाज वर्किंग, सो डीमोटिवेशन का कुछ ये नहीं था, क्योंकि हाँ, हाथ तो था. तो ग्रेट, ग्रेट। सो आप आपको आईएफएस का टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा था? डज़ इट बूस्टेड अप योर परफॉर्मेंस मतलब कैसा लगा आपको यस, सारी चीज़ें? हाँ, वाज रियली वेरी गुड. कैसे? बहुत ही अच्छा उसका जो वीडियो सॉल्यूशंस, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा हेल्प मिला मुझे सेट का. जब मैं पेपर मेरे सामने आया हाँ, तो हाँ। बहुत अच्छा मुझे फील हुआ कि यस, मैंने आईएफएस से ये पढ़ा, मैंने टेस्ट से ये उनका सॉल्यूशन किया, तो इसीलिए मुझे ये हेल्पफुल हुआ. दैट और इज वेरी. हाउ तो अबाउट you can realize that if test series are such a helpful, then if they join your classes, then that will benefit them more. राइट, 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 राइट। एंड हाउ अबाउट द बुक्स मतलब बुक्स कैसी लगी आपको आईएफएस की? हाँ, बुक्स तो बहुत अच्छी लगी. बुक्स भी मैंने बुक्स का सारा सॉल्यूशन मैंने कर लिया था, पूरा पढ़ ओके। लिया. तो क्या वो प्रैक्टिस सेशंस एंड ऑल आपको काम आए आपके एग्जामिनेशन में ताकि आपकी थोड़ा जल्दी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस एंड ऑल? हाँ, हाँ. बुक्स वर हेल्पफुल इज इट? यस. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड कुछ और सजेशंस आपका कुछ बच्चों को आप अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगी कि कैसे आपको आईएफएस ने मोटिवेट मतलब कैसे हेल्प कर रहा है टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस एंड क्या-क्या चीज़ें आप देख सकते हैं अगर आप अपनी एंड से कुछ बताना चाहेंगी लर्नर्स को या फिर जो भी प्लेटफ़ॉर्म से? Just do hard work as well as smart work. Hard work doesn't work. If hard work doesn't work, then smart work will work definitely. डेफिनिट करेक्ट, Uh, करेक्ट। प्रोफेसर की सुनो, आपके आईएफएस के, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और मोटिवेट हो जाओ, डेडिकेट हो जाओ. राइट, राइट, राइट। तो आपने सेल्फ स्टडी भी करी है, आपने आईएफएस की भी कोचिंग ली है, राइट? यस, ग्रेट, बिकॉज़ ऑब्वियस है ना कि सेल्फ स्टडी से एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, डेफिनिटली अगर एग्जैक्ट, आपका सेल्फ डेडिकेशन है एंड देन गाइडेंस इज़ देयर तो डेफिनिटली कैन एक बहुत अच्छा आउटकम आएगा उस चीज़ का। सिर्फ सेल्फ स्टडी से कोई भी मतलब क्रैक कर पाते हैं, बट सेल्फ स्टडी से क्रैक कर पाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है. सिंस आई वाज वर्किंग, सो मैंने आईएफएस का हेल्प लिया टेस्ट सीरीज के थ्रू, और आपके बुक्स के. Great, 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 great. So this is all about the toppers interview, and I hope you all liked it. Thank you so much, Radha, and again a very big congratulations to you on your score. Thank you Thank you so much. very much for inviting me. Nice to Nice meet you. talking to you, Radha. Thank you.